Hello students, this is your Shashank sir, and today we are going to do the video solution for the second day revision test. The name of the chapter is Cell the Unit of Life. Direct questions hai, but it is sure enough to give you the entire revision of the chapter in a very short amount of time. The first question is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. So defining character जो इसका definition है is the presence or absence of a nuclear membrane, right? Prokaryote में absent है, eukaryotic में present है. So option would be answer number B, right? The second question, intracellular compartments are not. Intracellular compartments not found. Intracellular compartments किस में नहीं मिलेगा? Prokaryotes में, because prokaryotes में cell organelles नहीं होते हैं, right? No cell organelles are present, right? Question number, coming to the next, which of the following is not a cell organelle? Which of the following is not a cell organelle? It is microsome. क्या है ये? Microsome है. What is microsome actually? राइट माइक्रोसोम है क्या? इट इज़ द आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को होमोजेनाइज करते हैं, ईआर को जब हम लोग होमोजेनाइज करते हैं ना, राइट, उसमें से ये आर्टिफिशियल वेसिकल्स बन के निकलता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन एक्चुअली नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, राइट. ये आर्टिफिशियल जब हम लोग इसको होमोजेनाइजेशन किसका, ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब होमोजेनाइजेशन होगा तभी जाके वहाँ पे वो बनेगा. सो इट इज़ नॉट अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज प्रेजेंट. ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्या है? द सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल. सेल ऑर्गेनेल दैट इज फाउंड, द सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड, बेसिकली द सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन, सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन कहाँ पे? अगेन आपको कहाँ पे मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा. तो ऑप्शन वुड बी 4 का डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे, ये तो सबसे छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा इज 1, right, which is followed by bacteria. Bacteria would be 2. Then there is the human RBC, the third, and सबसे single largest कौन सा है? Ostrich, right. So यहाँ पे आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा 1, बैक्टीरिया हो जाएगा 2, एंड ह्यूमन RBC हो जाएगा 3, whereas ostrich egg हो जाएगा 4. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका B. So option is B. Coming to the next question, question number 6, the internal layer joining the primary cell walls. Internal layer joining the primary walls of two adjacent cells. Primary walls of two adjacent cells. Basically आपको यहाँ पे ये कौन सा मिल जाएगा? The answer is middle lamella. Middle lamella acts as a glue. Correct. Question number 7, Robert Hooke had discovered the thin section of cork. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जब थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क को देखा था, वहाँ पे उनको मिला क्या था? What he was actually looking at? He was looking at the cell wall. The option would be B. Now desmosomes adherence junction भी है, तो सेल adherence के काम में भी आता है. तो desmosomes are concerned with cell adherence. ठीक है. Next question, when a cell engulfs or surrounds a solid particle and forms a vesicle around it. Solid particle किया and vesicle form किया. This phenomenon is solid particle क्या होता है? Solid particle जब उन्होंने inner किया, इसको phagocytosis बोलते हैं. देखिए basically it is a part of आपका एंडोसाइटोसिस. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस में अपने सॉलिड फूड लिया तो फेगोसाइटोसिस, और अगर आपने लिक्विड लिया तो हो जाता है पिनोसाइटोसिस. तो इस ऑप्शन का 9 का क्या हो जाएगा आंसर इज बी. Coming to the next question, carbohydrates are present in the plasma lamella in the form of, that means हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसके फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द प्रोटीन्स आर लोकेटेड. प्रोटीन कहाँ पर लोकेटेड है? प्रोटीन हमको मालूम है लिपिड बाइलेयर के ऊपर में पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन के हिसाब से रहता है. सो उनका अरेंजमेंट क्या है? डिस्कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है, राइट. बोथ ऑन द सरफेस एज पेरिफेरल प्रोटीन एंड इन द इंटीरियर एज द इंटीग्रल प्रोटीन. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में रिलेटेड होता है? ऑब्वियसली कैल्शियम रिलीज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन बियर्स क्या लाइसोसोम, सेंट्रोस्पेसिज्म नहीं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि नहीं है? ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट, द स्कैटर्ड सैक्स ऑफ गोल्गी इन प्लांट्स. तो गोल्गी, स्कैटर्ड सैक्स ऑफ गोल्गी क्या रहता है? वो सिंगल में रहता है ना, सिंगुलर रहता है, तो सिंगुलर गोल्गी को क्या बोलते हैं? डिक्टायोसोम, राइट. 14 का क्या हो जाएगा? डिक्टायोसोम, 14A.
15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विद, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर से आता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियर वॉल का जो आउटर मेम्ब्रेन है उधर से ही तो ये निकल के आता है, राइट। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियर वॉल। क्वेश्चन नंबर 16, which one is an important site of glycoprotein and glycolipid synthesis? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस किस में होता है, गोल्गी बॉडीज, ऑब्वियसली किस में होता है, गोल्गी बॉडीज। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन आपको मैच द फॉलोइंग देके रखा है कि लाइसोसोम, अच्छा लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम एक वेसिकल है ना जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, सो दिस वुड बी द लाइसोसोम। माइकोप्लाज्मा क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया विदाउट अ सेल वॉल, राइट। देन थाइलाकोइड क्या है, फ्लैटेंड सेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। एंड बैक्टीरियोफेज क्या है, इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द सेल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 3 एंड डी हो जाएगा 2, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नाउ माइक्रोबॉडीज, देखिए माइक्रोबॉडीज differ from lysosomes in that, microbodies differ from lysosomes in that, लाइसोसोम में क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, राइट, whereas आपके माइक्रोबॉडीज में नहीं रहता है, राइट। सो बेसिकली वही सिंपल एग्जाम आपको याद करके रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, लाइसोसोम्स कंटेन लाइटिक एंजाइम्स whereas माइक्रोबॉडीज डू नॉट, तो ये उनका डिफरेंस है। 18 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स ऑफ, ठीक है, सुइसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, उसमें क्या रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं उसके अंदर में, है कि नहीं है, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स, करेक्ट है। ओके, व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन नॉस्टॉक सेल्स, नॉस्टॉक सेल्स क्या है, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ना, दीज आर ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है, तो उसमें कौन सा टाइप ऑफ राइबोसोम होगा, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स विल देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल राइबोसोम्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ऑल राइबोसोम्स आर डिस्ट्रॉयड, इफ ऑल राइबोसोम्स आर डिस्ट्रॉयड, तो एक सेल में क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं होगा, सो 21 वुड बी डी, ऑप्शन नंबर 21 इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीराइबोसोम और एग्रीगेशन ऑफ, पॉलीराइबोसोम क्या है, पॉलीराइबोसोम एक एमआरएनए के ऊपर आपका मल्टीपल राइबोसोम, एक एमआरएनए के ऊपर आपका मल्टीपल राइबोसोम, तो क्या होगा, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ अ एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लाइसोसोम इज दैट, इसमें क्या होता है, लाइसोसोम का पीएच क्या है, इट इज, इससे साइटोप्लाज्म से उसका पीएच लोअर होता है कि नहीं है, पीएच उसका लोअर है, राइट। सो इट आल्सो इट्स एक्टिव एंड एसिडिक पीएच, so the it's a lower pH than the cytoplasm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस इन सेल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज सेल्स, कैसे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, नहीं, जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उसी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलता है, तो इनमें इन चार में से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस में ज़्यादा दिखता होगा, इन चारों में से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपका जर्मिनेटिंग सीड्स में दिखता होगा, सो ऑप्शन वुड बी बी, correct. Now question number 25, which of the following cell is considered to be rich in catabolic enzymes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो सब में ही एंजाइम्स है, ठीक है, लाइसोसोम्स में कैटाबॉलिक एंजाइम्स है लेकिन वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, बट इफ आई कंसिडर कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स दैट हेल्प्स इन दिस कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पे मिलेगा, दैट इज आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स मिलता है, हाईएस्ट नंबर है इसमें, ठीक है, इसमें हाईएस्ट नंबर मिलता है, right. Okay, coming to the next question, the presence of DNA in mitochondria and chloroplast suggest and supports the hypothesis, क्या supports करता है कि mitochondria और chloroplast both originated as in free living organelle, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से ये बताते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ऑरिजिनेटेड एज एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनेल, तो ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइट कलर्स ऑफ राइप फ्रूट्स किसके लिए आता है, ब्राइट कलर्स क्रोमोप्लास्ट के लिए आता है। एमाइलोप्लास्ट आर कंसर्न्ड विद, एमाइलोप्लास्ट किसके, स्टोर ऑफ स्टार्च, टू व्हिच ऑफ द following alluron layer protein, right, so which of the following is considered is protein storage, तो 29 का हो जाएगा आपका B, 29 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
30 अगेन एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, ये देखिए, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, येलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फ्लैट, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। तो अबव टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर इंक्लूडेड इन, ये क्या है, कलरलेस है, तो किस में आएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट ए, ल्यूकोप्लास्ट में चला आएगा। वेरी गुड। 31 ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर इंटरकनेक्टेड बाय, ग्राना किससे कलेक्ट होता था, स्ट्रोमा लेमेली, राइट। सो 31 का क्या हो जाएगा, सी। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होएगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी होएगा, सो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज एंजाइम्स फॉर बोथ प्रोटीन सिंथेसिस एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। नाउ 13 क्वेश्चन नंबर 33, मोस्ट ऑफ द वाटर इन टर्जिड प्लांट ऑकर्स चीफली कहाँ पे, ऑब्वियसली वैक्यूल्स 90% वहाँ पे प्लांट सेल को कवर करके रखता है, तो वैक्यूल में जितना, वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्जिडिटी, राइट। Okay, the fluid part of cell called as cell sap is non-living content, living content, non-living content of the vacuole of the cell. It is non-living content of the vacuole of the cell. Cell sap कहाँ पे रहेगा, वैक्यूल में रहेगा, इसको सैप वैक्यूल ही बोलते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा आपका सी, 34 का हो जाएगा आपका सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, ऑब्वियसली ये वैक्यूल का कवरिंग है, टोनोप्लास्ट इज वैक्यूल का कवरिंग, तो 35 का बी। मेन स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का मेन स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रियोल इज अरेंज्ड इवनली 9+0, तो उससे जब सिलियन फ्लैजल निकल करता है उसका क्या होता है, उसका होता है 9+2। ओके, नेक्स्ट बेजल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, यस बेजल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला डिराइव्ड बाय सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल से डिराइव होके आता है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का सी। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस अ साइटोस्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ, यूकैरियोटिक सेल का साइटोस्केलेटन किससे बनता है, साइटोस्केलेटन 3 टाइप ऑफ फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, है कि नहीं है। माइक्रोट्यूबल से बनता है, माइक्रोफिलामेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट से बनता है, करेक्ट है, राइट। सो 39 का क्या हो जाएगा, ए, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में स्टेटमेंट्स देके रखा है, इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर अनवांटेड मटेरियल्स, इट इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, plant cells which occupy 90% of the cellular volume, it content form cell sap, it maintains turgor pressure। obviously ये किसका बात बोल रहा है, ये हमारा सैप वैक्यूल का बात बोल रहा है, तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा बी। Now 41, the cytoskeleton is a proteinaceous network of fibers and the cytoplasm involved in, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मोटिलिटी देगा, मेंटेनिंग ऑफ सेल शेप करेगा, सो आंसर इज डी, ऑल, आंसर इज डी, 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, बैक्टीरियल फ्लैजिलम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, बैक्टीरियल फ्लैजिलम में क्या होता है, एक बेजल बॉडी होता है, एक हुक होता है, एक फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट होगा, माइक्रोट्यूबल होगा, हुक होगा, राइट, सॉरी इसमें आपका क्या नहीं होगा, बेजल बॉडी होगा, हुक होगा, फिलामेंट होगा, क्या नहीं होगा आपका, माइक्रोट्यूबल, बिकॉज ये किससे बनता है, ये आपका माइक्रोट्यूबल से नहीं बनता है, ये बैक्टीरिया का क्या होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है ना। ओके, सो द आंसर इज बी, 42 का बी। 43, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस सिंथेसिस ऑफ व्हाट, राइबोसोमल आरएनए, एक न्यूक्लियस क्या सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस, न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंटिन्यूअस विद द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल थ्रू, राइट, किससे होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन उसके अंदर में ये क्या रहता है, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल न्यूक्लियर पोर्ट्स, और न्यूक्लियर पोर्ट्स के साथ ही वो क्या करता है, इट कनेक्ट्स विद दी साइटोप्लाज्म, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का सी, 44 का सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रोमोसोम इन व्हिच द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड नियर वन एंड, अगर नियर वन एंड में सिचुएटेड है, नियर वन एंड में सिचुएटेड है तो क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक है, मिडिल में, एकदम मिडिल में होगा तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा ऊपर होगा तो सब मेटासेंट्रिक, एक साइड में सिचुएटेड होगा एक्रोसेंट्रिक, और एक टर्मिनल में सिचुएटेड है तो वो क्या हो जाता है, टेलोसेंट्रिक, ठीक है, दिस इज टेलोसेंट्रिक, ठीक है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे describes that all living organisms are composed of cells and products of cells, all cells arise from pre-existing cells, यही दो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज डी, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, which of the following is correctly matched, mycoplasma, yes 0.3 micrometer, bacteria
3 to 5 होता है, so 3.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ वो भी चलेगा. RBC 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ, so ऑप्शन हो जाएगा D 47. D all of them is correct, right? क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दे के रखा है? द शेप ऑफ द सेल में वेरी द फंक्शन दे परफॉर्म, करेक्ट है. नर्व सेल और द लॉन्गेस्ट सेल्स, ये भी करेक्ट है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज द एग ऑफ एन ऑक्सट्रिच, ये भी करेक्ट है. ब्लू ग्रीन एल्गे इज प्रोकैरियोट, ये भी करेक्ट है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर, करेक्ट. एंड मल्टीप्लाई स्लोली, नहीं स्लोली तो नहीं, ये क्या होता है, ये फास्ट होता है, ये फास्ट होता है, तो ये रॉन्ग हो जाता है. तो क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी आवर स्टेटमेंट सर, ये इनकरेक्ट, एक ही होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, हाउ मेनी दी अबव ऑप्शंस आर करेक्ट, तो करेक्ट होने से ये क्या हो जाएगा, बी. क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको निकालना है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 4 ऑफ देम आर करेक्ट. Question number 49, which is common for both plasmid and mesosomes? Both are made of nucleates, both are concerned with molecular, both are found in prokaryotes. These are found in prokaryotes. Plasmids और mesosome आपको prokaryotes में ही मिल जाएगा. ठीक है. Question number 50, which one is true for mesosomes? Which one is true for mesosomes? These are extension in the form of vesicles, tubules and lamella. Correct है. They help in cell formation, DNA replication, distribution, daughter cells. ये भी correct है. They help in respiration, secretion, increase in synthesis and plasma. ये भी correct है. So क्या हो जाएगा आपका 50, all of them are correct, right? 50 हो जाएगा D. Coming to the next question, select the correct statement with respect to plasma membrane, right? Lipids are arranged in polar head and नहीं. Lipid covers the membrane of phospholipids, हाँ ये true हो सकता है, right? Phospholipid bilayer, human नहीं. Ratio with protein almost same तो नहीं होता है, ये भी गलत है कि नहीं है, करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो बनता है. सो 51 का हो जाएगा बी. ओके. द क्वासीफ्लूइड नेचर ऑफ enables the movement. ओके, क्वासीफ्लूइड नेचर किसका, क्वासीफ्लूइड नेचर लिपिड का मेम्ब्रेन बनता है ना, लिपिड का लेयर enables the lateral movement of protein over bilayer protein. So 52 का क्या हो जाएगा, बी. क्वासीफ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड enables lateral movement of the protein with the overall bilayer. ओके, फिर सेल वॉल. सेल वॉल मे बी ए लिविंग स्ट्रक्चर, नहीं लिविंग तो है नहीं. प्रोवाइड्स फ्री पैसेज, नो डजंट प्रोवाइड फ्री पैसेज. ऑफ एल्गल सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ हो सकता है. हैज मिडिल लेमेला मेनली मेड अप ऑफ मैग्नीशियम, मिडिल लेमेला तो बीच का पार्ट है, तो वो तो सेल वॉल का तो खुद का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफ एल्गल सेल इज मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड. सो 53 का हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 54, which is correct for Golgi apparatus. Position enzymes functional pH नहीं. नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम फ्यूज होते नहीं, ट्रांसफेज के साथ तो फ्यूज नहीं होता है, राइट. सिस फेज और गोल्गी रिमिशन, यस, क्योंकि वो सिस उधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आके सिस फेज से ही फ्यूज होता है. सो दिस इज करेक्ट. ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स सारे नहीं, ये भी नहीं. सो 54 का क्या हो जाएगा, 54 का आंसर इज सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग में अच्छा कौन क्या बनाता है, ER एंडोप्लाज्मिक, यस. लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, गोल्गी, सिस एंड ट्रांसफेस, लाइसोसोम हाइड्रोलेस हो जाएगा, लाइसोसोम हाइड्रोलेस एंड वैक्यूलिस टोनोप्लास्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3. तो 55 का हो जाएगा आपका डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not true for mitochondria unless specifically trained, these are not easily visible in microscope. ये करेक्ट है. ड्रामा माइटोकॉन्ड्रिया कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं होता, ये तो वेरी करेगा ना, ये वेरी करेगा. सो दिस इज रॉन्ग. देयर आर द सॉसेज शेप सिलेंडर, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट. सो नॉट ट्रू. सो 56 का क्या हो जाएगा, बी. 56 का हो जाएगा बी. 57 बोला है, right. 57, study the names of the different cell organisms given below, how many of them are bound by single membrane. Okay, so rather than do that, जिसमें डबल मेम्ब्रेन है या फिर मेम्ब्रेन नहीं है उसको ही काटते हैं, देखते हैं. लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन चलेगा. गोल्गी, ER, राइबोसोम नो मेम्ब्रेन, ये भी चलेगा. क्रोमोसोम नो मेम्ब्रेन, ये भी चलेगा. थाइलाकॉइड, फ्लैजेला, पेरोक्सिसोम. सो 1 2 3 4 5 6, राइट. तो इसमें कितना हो गया, सो कितना है 6. 58 का क्या हो जाएगा, 57 का क्या हो जाएगा, ए 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमोसोम. क्रोमेटिन हाईली एक्सटेंडेड बोला है ना इंटरफेस न्यूक्लियस, तो क्या दिखेगा मेरे को, क्रोमेटिन ही दिखेगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एमीबा इज, ये क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पहला वाला ही ऑप्शन है, एक्सक्रीशन एंड ऑब्जर्वेशन। सो वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एमीबा क्या करता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर वाला डीमिलेटिंग, इनर वाला वो जो एंजाइम्स कैरी करता है, राइट। सो डीमिलेटिंग स्ट्रक्चर एंजाइम्स कैरी करता है, इनर वाले में इनफोल्डिंग भी है, क्रिस्टे भी है, ठीक है। सो बोथ द मेंबर्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शन सिमिलर नहीं, राइट, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट हो सकता है, राइट, स्ट्रक्चरली सिमिलर, फंक्शनली डिफरेंट नहीं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं, तो इसमें कॉम्बिनेशन में कौन सा बैठता है, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली दे आर डिफरेंट। 60 का हो गया आपका बी। 61, एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ऑब्वियसली ये क्या है, इज अ मीसोसोम, क्या है, मीसोसोम है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्वियसली आरबीसी ऑफ अ ह्यूमन, आरबीसी ऑफ अ ह्यूमन ही उसका बेस्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेली नहीं रहता है। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन कैलामाइडोमोलस इन मेसोफिल सेल, और रेंज बताए 1 to 20, एक तो 1 है, राइट, क्लोक्लामाइडोमोलस में 1 होता है, और मेसोफिल में 20 से 40 तक आपका रेंज करके चला जाता है, 63 का डी। नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में क्या है, मेटासेंट्रिक में आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, एट द मिडिल मिलेगा, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल मिलेगा, एक्रोसेंट्रिक ऑलमोस्ट नियर द टिप है, एंड स्टेरोसेंट्रिक इज एट द टिप है, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज 3, बी इज 4, सी इज 2 एंड डी इज 1। ओके, नाउ 65 लुईन हॉक ने क्या देखा था, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल, वेरी गुड। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, राइट। श्वान ने क्या किया था, श्वान प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल, इसने दिखाया था। एंड स्लाइडर ने क्या था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल बनाया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका A1, ये राइट, 65 का है। सो क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर लेवल डायग्राम। अच्छा, ए बी सी डी को दिखाना है, तो ए बी सी डी को दिखाना है, तो ए तो टेलोसेंट्रिक है, बी तो एक्रोसेंट्रिक है, सी सब मेटासेंट्रिक, और डी क्या है, मेटासेंट्रिक। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा मिलता है, ए टेलोसेंट्रिक, बी क्रोमोसोम। सो 6 अगेन सेम डायरेक्ट, 66 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 66 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका ए। क्लियर। Coming to the next question, according to the widely accepted fluid mosaic model, mammals where lipids and integral proteins diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this section, incorrect पूछा है, proteins can undergo, ये तो डायरेक्टली पहले प्रोटीन्स तो नहीं भाई, लिपिड आपका फ्लिप-फ्लॉप मेम्ब्रेन दिखाता है, प्रोटीन नहीं दिखाता, तो इनकरेक्ट बोला तो पहला ही लग गया। द ऑप्शन इज 167 इज 1, ठीक है। ओके, 68, एट विच pH लाइसोसोमल रिमेन्स एक्टिवेट, ऑब्वियसली एसिडिक pH रहेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस इज मैट्रिक्स, ठीक है। क्रिस्टे आपको कहाँ पे मिल जाएगा, क्रिस्टे आपको कहाँ पे मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन इज 3। सेल्फ डिप्लीकेशन डज नॉट ऑकर, सेल्फ डिप्लीकेशन कौन सेल्फ डिप्लीकेट नहीं कर सकता, सेंट्रियोल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। 71 का हो जाता है 4। पैलेट पार्टिकल्स क्या है, वेरी इजी, राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S, एस को क्या बोलते हो, सेडवर्स यूनिट, 73 का 1। ओके, 74 न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, टर्शियरी कंस्ट्रक्शन, इट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन, किस में काइनेटोकोर रहता है, ऑब्वियसली क्रोमोसोम पे। व्हिच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कंसर्न्ड विद एजिंग ऑर्गेनिज्म एंड कैंसर, किसमें, टेलोमेरिक सीक्वेंस, टेलोमेरेज एक्टिवेट हो जाता है, टेलोमेरिक सीक्वेंस डिलीट नहीं होता है, तो वो सेल क्या बन जाता है, कैंसरस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टेलोमेर। 76 का 2। 77, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, राइट, क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट, राइट। क्वेश्चन नंबर 78, इफ द सेंट्रोमियर of a submedian is submedian, two arms are unequal, the chromosome obviously क्या होगा, सब metacentric होगा। Next question, if you are provided with root tips of onion in your class and you are asked to count the chromosomes, which are the following stages, आपको क्रोमोसोम कहाँ पे दिखेगा, राइट, डिवाइडिंग सेल, और डिवाइडिंग सेल में भी क्लियरली कहाँ पे दिखता है, मेटाफेज स्टेज, करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80, अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर
फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय जेम्स बाय जॉर्ज पेलेज, यही काफी होना चाहिए आपके लिए। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, क्या होगा? राइबोसोम। 80 क्या हो जाएगा? राइबोसोम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेंट्रोसोम आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीन्यूक्लियर मटेरियल, ये करेक्ट है, राइट। फिर आपका इन सेंट्रोसोम बोथ लाई नहीं, परपेंडिकुलरली लाई करता है, सो दिस इज रॉन्ग। सेंट्रियोल्स आर मेड ऑफ 9 अनइवनली, नहीं इवनली स्पेस होता है 9 + 0, राइट। ये भी क्या है? गलत है, राइट। देन हब इज द सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल, ये करेक्ट है। प्रोटीनियस रियल स्पोक्स कनेक्ट हब टू द पेरिफेरल ट्रिप्लेट्स, ये भी करेक्ट है। तो ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा? आपका 81 का हो जाएगा 3। Now, which of the following is correct for a cell which has naked double circular DNA? Naked double circular DNA क्या? प्रोकैरियोटिक का बात बोल रहा है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या बोथ 70 and 80s राइबोसोम आपको मिलेगा? नहीं, 70s ही मिलेगा। हिस्टोन आर एब्सेंट, करेक्ट है। कंपार्टमेंटेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, ये भी करेक्ट। ऑलवेज डिप्लॉयड, नहीं। सो यहाँ पे आपका कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट हो जाएगा? 82 का 2। सीलिया आर डिफर फ्रॉम फ्लैजेला, सीलिया आर डिफर फ्रॉम फ्लैजेला किसमें होता है, राइट? Cilia differ from flagella in having a small size, ठीक है, ये भी चलेगा, ये करेक्ट है, राइट। इन हैविंग नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, ये तो गलत है। इन टेकिंग पार्ट इन अटैचमेंट, फीडिंग एंड सेंसेशन, राइट, ये करेक्ट है, राइट। इन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स ना, ये तो 9+2 है इसका, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर दे आर। इन वर्किंग लाइक आवर्स, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ACE। सो 83 का हो जाएगा आपका 1। Next, 804. The researchers made an observation about protein ribosome and eventually used to build a cell's plasma membrane. The protein in the membrane was actually slightly different from the protein made by ribosome. The protein was probably passed through. अगर जो original protein था प्लाज्मा, ठीक है, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या बोला था? रिसर्च मेड एन ऑब्जर्वेशन अबाउट ए प्रोटीन, right, made by ribosome and eventually used to build a cell's plasma membrane. The protein in the membrane was actually slightly different from the protein made by the ribosome. तो सेल राइबोसोम ने जो बनाया था, लेकिन वो थोड़ा उससे जो मेम्ब्रेन का प्रोटीन था वो एक्चुअली डिफरेंट था। किस लिए? बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज मस्ट पास थ्रू दी गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस करेगा तो उसको प्रोटीन को मॉडिफाई कर देगा, राइट। तो अगर ऑरिजिन से आपको प्रोडक्ट अलग मिल रहा है, दैट मीन्स दैट हैज बीन मॉडिफाइड, और सेल में मॉडिफिकेशन सेंटर कौन सा है? गोल्गी एपेरेटस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन द इंटरफेस न्यूक्लियस? इंटरफेस न्यूक्लियस में मेरे को क्या देखने को मिलेगा? क्रोमेटिन दिखेगा, ठीक है। क्रोमेटिन के साथ साथ आपको न्यूक्लियस भी दिखेगा, न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 85 का 4। 86. Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anything less than a complete living structure, anything less than a complete structure does not ensure. Both of the statements are correct, and yes, ये fundamental structural और unit इसलिए है because anything less than a complete structure it does not ensure independent living. तो ये क्या हो जाएगा? A. 86. Both assertion reason and reason is also correct. 87. All cell organisms of the eukaryote, all cell organisms of eukaryote are surrounded by either single और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। नहीं, क्यों? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी तो है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये किधर जाएगा? ठीक है। देन यूकैरियोटिक सेल, नन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कैन वर्क विदाउट एक्जिस्टेंट मेम्ब्रेन्स, ये भी गलत है। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर व्हाट? रॉन्ग। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 88. Coming to question number 88, the cell wall is not only a structural component but also show a dynamic role for the cell. Very good. Cell wall helps in cell-to-cell interaction, provides very for understanding micro. Yes, the cell wall is not only a structural component but also dynamic role for cell. Yes, because cell wall helps in cell-to-cell interaction and also provides बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यही यहाँ पे दिखाता है कि ये स्ट्रक्चरल भी नहीं, डायनामिक रोल भी प्ले कर रहा है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट्स एंड पेरिक्सोसोम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ट्रू, बिकॉज देयर फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा आपका ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन प्रोटीन सिक्रेटरी सेल्स। है क्या ऐसा? नहीं है, वो लिपिड में चाहिए होता है कि नहीं है? लूमेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ओनली स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी, ये भी गलत है, राइट। सो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा आपका डी, करेक्ट है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, राइट। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बट दिस ऑल द डायरेक्ट क्वेश्चंस हैज इंश्योर्ड कि आपका चैप्टर फुल्ली रिवाइज हो गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में।
डे 3 का उससे ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।